शालोम, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू पीपल ऑफ गॉड। और एक और खूबसूरत वीडियो के साथ आपके सामने देख रहे हैं कि हम चल फिर रहे हैं। शाम का वक्त हो गया था, खाना खाया तो फिर हम वॉक के लिए निकल गए। और जो मैंने खाना कुक किया था वो एंड पे आपको दिखाऊंगी। तो मैंने सरफराज और फैमिली सब हम मिलकर वॉक करने के लिए गए। ये बिल्कुल पास ही था, तो हमने कहा चलो एक राउंड लगा लेते हैं और अपने अजीज़ों के साथ शेयर भी कर लेते हैं। सारा दिन बहुत हमें बरकत मिली और खुदा का शुक्र किया सब बातों के लिए जो खुदा हमारे साथ करता है, हमें अपना टाइम देता है फैमिली के साथ, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ। तो ये बड़ी ब्लेसिंग काउंट होती है। तो ये जगह थी, बच्चे दिखाना चाहते थे हमें, तो हमने कहा चलो देख लेते हैं। और बिल्कुल देख सकते हैं चांद निकला हुआ था, निखरा हुआ था। और एंड ओवेज मून ओवेज रिमाइंड्स मी ऑफ द ऑसम ग्लोरी ऑफ गॉड। जो खुदावन का जलाल है, खुदावन का नूर है, ये कुछ भी नहीं है उसके सामने, चांद सितारे। लेकिन एक दिन हम उस खुदा से मिलेंगे जिसने इस दुनिया को बनाया। और देखते हैं क्रॉस डिस्टेंस में रात को देखा और फिर हम आ गए घर, दुआ की। फिर जब सुबह उठे तो मैंने जब खिड़की खोली तो ये सीन मेरे सामने रोज़ होता है। तो मैंने कहा मैं आपके लिए Hallelujah. यहाँ से रोज़ दुआ कर रही Heavenly हूँ, Father, I आज come आपके साथ before you in the दुआएं करती mighty हूँ name of our Lord और and Savior आपके लिए Jesus ब्लेसिंग Christ, चाह रही हूँ। the King of glory, the Prince of peace, and there's none like you. I love you, Lord, and I praise you, Father, as we begin this day in the most beautiful, majestic name, Yeshua HaMashiach. I thank you, Lord, that you open the windows of heaven for us every single day as we come to you. Lord, I pour out my heart to you because you're the God who gives us life and you do the deep things in our spirit. Thank you, Father. Thank you, Jesus, for giving us a revelation of heaven where we are destined to go one day. Hallelujah, hallelujah. Lord, give us a richer anointing. Pour your anointing on my heart, Lord, on my eyes, on my ears, on my hands and feet, on my spirit and soul. Lord, let not my flesh take over, but spirit take over, Father. Yes, Lord, remove all the trash, all the unwanted from me, Lord, and just draw me more closer to you. I thank you, Lord. Father, I just pray that you will pour out your anointing today in a very special and a fresh way, that I can love others, that I can feel the pain of my friends and family who are suffering and struggling, Lord. Lord, as I pray, I will pray a prayer of love and faith and healing, Father, that you'll remove every sin away from the people that I pray with. I thank you, Lord Jesus. My heart is humbled before you because you alone are the King and the Lord in my heart, in my life, Lord. I thank you, God. Thank you, Lord, for pouring this anointed holy oil. I receive in Jesus' name. Lord, the Lord is saying, those lips that have been tight and sealed by the enemy, I shall bring an explosion into your mouth from the depth of your spirit, from the inner beings, and I shall explode with the prayer and praise that shall come to heaven, and it shall not just rest on the altar, but it shall be felt. Your prayer shall be heard, and they shall be effective and felt by everyone here on earth and in heaven. I thank you. खुदा कहता है कि जो दुआ करते हैं नहीं कर सकते, जिनके लिप लिटरली डेवल ने जैसे सील किए हुए हैं, जैसे ग्लू लगाई हुई है लिप्स के ऊपर, टाइट किया हुआ है, सो दैट यू वोंट प्रेज गॉड, आप खुदा उनकी तारीफ ना कर सको. Or maybe you feel unworthy, maybe you feel dirty, because probably you've been smoking, you've been drinking, you've been swearing, you've been abusing your mouth, your tongue, और आपको लगता है कि आप क्लीन नहीं हैं बिकॉज आपने मुंह से गालियाँ निकाली हैं, सिगरेट पी है, शराब पी है, बुराई की है, खुदा की तौहीन की है, खुदा के अगेंस्ट कहा है, होली स्पिरिट को आपने ग्रीव किया है. खुदा कहता है, if you repent and come to me now, this is the time, this is the hour, this is the day that I will cleanse you. I will replace that tongue, जो जुबान को मैं replace कर दूंगा. Hallelujah. खुदा कहता है, जो तू बोलेगी, जो तू बोलेगा, it shall shake you to the very core. And the words that you will speak, they will be not the words of your own. जो आप बोलोगे वो आपके words नहीं होंगे, वो खुदा का पाक रूह आपको देगा. Hallelujah. Thank you, Yeshua. Thank you. You're feeling like an electricity coming over your heart, over your body, over your spirit.
खुदा कहता है मैं ये चेंजेस कर रहा हूँ, मैं रिन्यू कर रहा हूँ आपकी ज़ुबान को, ताकि आपकी ज़ुबान सील ना रहे बल्कि लूस हो, खुले, ताकि खुदावन कहता है मेरे जैसे यसाया नबी कहता है कि मैं चिल्ला चिल्ला कर ज़ोर से मैं दुआ करूँगा, खुदावन मेरी दुआ को सुनेगा। जैसे खुदावन कहता है पतरस ने दुआ की जेल में और जंजीरें टूट गई और जेल के दरवाजे खुल गए, और जैसे मैं दुआ कर रही हूँ बाहर चर्च की बेल्स बज रही हैं। सो आमीन कहें, रिसीव करें, आपके लिए ब्रेक थ्रू हो रही है। एंड द माइटी विंड ऑफ द होली स्पिरिट इज गोइंग टू ब्लो ऑन यू। पाक रूह की कुदरत और पाक रूह का की जो गहराई आपको समझ आने वाली है। हालेलुया। खुदा उन कहता है जब आप सोएंगे आप अपने ड्रीम्स के लिए दुआ करेंगे, अपनी रूह को शांत करने के लिए खुदा कहता है आपको वो ड्रीम्स देगा। खुदा कहता है देयर इज लॉट ऑफ people have accused you of being mental and crazy. The Lord said, I will close the mouths of your enemy. जो आपको कहते हैं आप पागल हो गए हो, आप crazy हो, आप mental हो गए हो, खुदा कहता है मैं उनके मुंह बंद करूंगा, मैं दिखाऊंगा। I'm putting my wisdom, मैं अपनी हिकमत, अपनी wisdom तुम में डालने जा रहा हूँ। So that you will know that I am your God. I thank you, Lord, for this beautiful prayer. We receive in Jesus' name. I hope you receive that prayer. और ये देख सकते हैं कि ये प्रेयर शॉल हमेशा हेडबोर्ड पे होती है मेरे बेड के साथ, और इट जस्ट रिमाइंड्स मी ऑफ गॉड्स ब्यूटीफुल प्रोमिसेस। कई बार मैं अपने जब बेड बना के जाती हूँ उस पर रख देती हूँ, या फिर बैक ऑफ द जो पिलर्स के साथ ऊपर हेडबोर्ड, उसके ऊपर हमेशा ये प्रेयर शॉल होती है। और फिर हम चल पड़े, ब्रेकफास्ट किया और चले हैं। आज हम आपको देसी मार्केट लेके जा रहे हैं। देसी मार्केट का मतलब है कि पायनियर कैश एंड कैरी। इसमें जब भी हम आते हैं ले तो शॉपिंग करते हैं, देसी खाना जो भी लेना होता है। आप देखेंगे कितनी खूबसूरत कलरफुल वेजिटेबल्स, हर चीज़ जो यहाँ मिलती है। और थैंक यू सरफराज, आप हमें हमेशा हेल्प करते हैं, और कैमरे के साथ भी। और क्या कहते हैं कि कई चीज़ों का पता नहीं होता, उसके बारे में बता भी देते हैं। देसी ख़ास तौर पे जैसे हर्ब्स होती हैं, दाल वगैरह ऐसी चीज़ें। ओके, एज यू कैन सी एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हियर पायनियर। ये जो आर्टिशिया में ये कैश एंड कैरी है, और आप देख सकते हैं लोग कितनी खुशी से यहाँ आके शॉपिंग करते हैं। जब हम भी जाते हैं हमें हर किस्म की फ्रूट, कह लें कि ख़ास तौर पे जो वेजिटेबल्स होती हैं मिलती हैं, और इतनी वैरायटी होती है। देख रहे हैं लोग काफ़ी बल्क में यहाँ ख़रीदते हैं। और ये कहते हैं कि ये एक्चुअली जो जगह है यहाँ पे बहुत सारी जो कम्युनिटी रहती है, इसमें हमारे बहुत सारे इंडियंस हैं, पाकिस्तानीज हैं, श्रीलंकन एंड बांग्लादेश, ऑल पीपल, ऑल टाइप्स ऑफ पीपल। यहाँ एक कम्युनिटी जिन्होंने फॉर्म की हुई है वो यहाँ पे शॉपिंग करते हैं। पायनियर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कैश एंड कैरी इन द होल ऑफ कैलिफोर्निया। देसी यानी कि अगर कैश एंड कैरी को देखा जाए तो ये सबसे खूबसूरत है, सबसे क्लीन और टाइडी मुझे हमेशा लगती है। जब भी हम वहाँ जाते हैं वाकई ही तारीफ़ करने के लायक है। हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। स्टाफ इज़ ऑफ कोर्स वेरी वेरी फ्रेंडली। और डेयरी खानी है, केक्स लेने हैं, आप यहाँ आ सकते हैं। दालें लेनी है, दिल करता सेवरी खाने के लिए, क्या चीज़ आप जो मिस कर रहे हैं इंडिया या पाकिस्तान में, वो आपको यहाँ आके मिलेगी। तो बहुत सारी प्रेज़ कर रही हूँ मैं इस जगह की, क्योंकि खुदावंद हमें लेके जाते हैं यहाँ, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ले लेते हैं। सरफराज पॉइंट करें, ये सारे आटे किस्म के डिफरेंट टाइप्स ऑफ आटे, चपाती फ्लावर, देख ले कितना अच्छा रैक इन्होंने लगाए हुए हैं। सिस्टम बहुत खूबसूरत है, एंड नथिंग गेट्स इन योर वे। सो हे वी आर, मैंने कहा चलें अब कुछ पी लेते हैं। गर्मी काफ़ी थी बाहर, तो मैंने सोचा लस्सी, काफ़ी देर होगी नहीं पी। वैसे मैंने बाज़ार की लस्सी पहले तो कभी नहीं पी, इट्स बीन एजेस एंड एजेस। तो मैंने कहा अच्छा यहाँ हमने लस्सी ज़रूर टेस्ट करनी है। तो देख सकते हैं ये सारा आटा नज़र आया आपको, ये है लस्सी। So I said to my son, shall I try? He said, Mom, it's really nice. हम लोग ये इसको लेते हैं, पीते हैं, so you have a go. So मैंने भी इस लस्सी को जो है ट्राई किया। जब हम स्टोर से बाहर आए तो हमने खोल के इसको टेस्ट किया। अच्छा, आगे देखें ये कितनी वैरायटी है फ्रोज़न फूड की। लोग खुशी से ले रहे हैं। यू कैन सी पीपल आर वो बाइंग, उनकी जो ट्रॉलीज थी भरी हुई थी सामान से। ये राइस है, दिस इज़ द वैरायटी ऑफ राइस दैट यू कैन बाय from there, all types of rice आपको मिलेंगे, brown हो, basmati rice, whatever you name it, and this is so beautifully stacked. And of course you can't go wrong with getting this bargain जो biscuit variety मिलती है।
Yes, we bought about 6 packets of those because my grandson loves those biscuits. Okay, as you can see, we're turning around and look at into the aisles. There's so much food, so much to look at, and so much to buy. And for your every need, हर चीज़ के लिए जो ज़रूरत है आपको इस स्टोर पाइनियर में मिलती है. So I think people find it very convenient to go to this store. यहाँ गुड़ भी मिलता है. You just name it. ये देखिए कितनी वैरायटी तेल में है, और फिर हनी ले लें, कुछ भी चीज़ आपको चाहिए तो यहाँ से मिलती है. तो हमें तो बहुत ब्लेसिंग लगती है ये. रियली आई वांट टू ब्लेस दिस प्लेस and because God has provided for all our needs under this one roof, and खुदा उनके हम शुक्रगुजार हैं. फिर सफराज स्टॉप करने लगे. पराठे क्या कहते हैं कि कुकते होते हैं, थोड़ा सा इसको करना पड़ता है कुक. तो ये पराठे देखे, सरफराज मुझे कह रहे हैं कि ये पराठे ले ले. मैंने कहा देखो गर्मी बहुत है, अभी पूरा दिन हमने बाहर घूमना है, तो बेटर पराठे हम नेक्स्ट टाइम लेंगे, नहीं तो गाड़ी में पड़ी रहेगी, शॉपिंग ख़राब हो जाएगी. तो इसलिए बहुत ज़्यादा अब की बार हमने ख़रीदा नहीं, तो सिर्फ ये हम आपको दिखाना चाहते थे, इसलिए ये स्पेशल ट्रिप हमने लगाया. बिकॉज वी हैड ऑलरेडी डन आवर शॉपिंग व्हेन वी केम 3 weeks ago. तो ये देख लें, मैं दिखा रही हूँ आपको. शेल्व्स आर सो ब्यूटीफुली नीटली स्टैक्ड एंड फुल, यानी कि आपको मिलती है यहाँ पे वैरायटी ऑफ व्हाटएवर स्पाइसेस वो, या जैसे दाल चावल आपने देखा, ऐसी चीज़ें सारी हर चीज़ यहाँ पे मिलती हैं. I came across some new lines which I had not come across before, so I was really sort of intrigued and blessed कि कितनी अच्छी ये जगह है जहाँ पे हमें हर चीज़ मिलती है. So we were just walking around with our camera and just being nosy to see, to show you actually कि snacks में कितना हम अपने आप को spoil कर सकते हैं, इतनी variety है. Of course spicy है, chilies के साथ है, without chili there's all sorts of food available. And this is in Artesia, which is a city in Los Angeles County, California. And it's known for its rich cultural diversity, जैसे मैंने कहा, particularly strong South Asian and Portuguese influence as well. Okay, और यहाँ की बड़ी हिस्ट्री है, वो है फार्मिंग कम्युनिटी यहाँ इस्टेब्लिश हुई थी, आर्टिशियन वेल्स, कहते कि 1959 में. और ये लॉस एंजलिस की जो पॉपुलेशन है काफ़ी ज़्यादा है. मिक्स ऑफ सबर्बन living with a vibrant downtown area featuring diverse dining, shopping and cultural events. आपने एक हमारी वीडियो में देखा भी था कि जो कल्चरल इवेंट्स यहाँ होती हैं, क्योंकि हम लोग काफ़ी बार आए हैं तो हर बार पता चलता है, जैसे कभी कोई बॉलीवुड के स्टार्स आ रहे हैं, सिंगर्स आ रहे हैं, और बड़ी अच्छी तरीके से अरेंज होते हैं यहाँ पे वो इस किस्म के प्रोग्राम. और ये पायनियर जो कैश एंड कैरी है, ये आर्टिशिया की लोकेशन में है. And it, like I said, it's considered one of the largest Indian grocery stores in California. What a blessing for us to be shopping there. और क्या कह सकते हैं, बाइबल तो हमें प्रिपेयर करता है हर वक्त के हमें अपने मील्स खुद प्रिपेयर करने चाहिए, शेयर करने चाहिए रोज़ की ज़िंदगी, एवरीडे लाइफ में. एंड यू नो व्हेन वी शेयर आवर फूड, वी शो हॉस्पिटैलिटी एंड वी शो लव एंड लव ऑफ गॉड. तो ये बड़ी एक खूबसूरत बात है कि हर हाउस होल्ड को इन खानों की, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, और वो जब आते हैं तो प्यार के साथ शॉपिंग की जाती है. लेकिन ऑब्वियसली व्हेन इट कम्स टू पेइंग इट, थोड़ा सा फील होता है कि आज तो बिल बहुत बड़ा बन गया. लेकिन खुदा उनका शुक्र करें जिसने आपको मौका दिया कमाने का, और उसकी शुक्रगुजारी करें. फिर आप यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं, and you're able to make payment with what you have earned, and just bless your food. and खुदावंद कहता है कि ये बड़ी अच्छी बात है कि जब हम अपने एक दूसरे के साथ अपने फूड को शेयर करते हैं. और ख़ास तौर पर प्रोवर्ब्स 31 जो वुमेन के बारे में लिखा है, वाइफ ऑफ नोबल कैरेक्टर, प्रोवर्ब्स में बताया गया है कि वो किस तरह से लविंगली एक्ट करती है, अपने पूरे हाउस होल्ड के लिए प्रोवाइड करती है. आई कम बैक टू दैट इन ए मिनट. कैन यू सी रिक्शा जो इंडिया में होता है, हम लोग बॉम्बे बैठे थे लास्ट टाइम, तो मैंने अपने बेटे से कहा ज़रा हमें भी राइड ले लेते हैं. राइड तो नहीं, ऐसे खड़ा है रखा हुआ. इमेजिन टेकिंग ऑल द ट्रबल टू ब्रिंग इट ऑल द वे फ्रॉम इंडिया, और लोगों को याद दिलाने के लिए, जस्ट टू मेक देम फील गुड एट होम. सो बिल्कुल सही बात है कि जो एक वाइफ होती है उसका नोबल कैरेक्टर है बाइबल में, और जब शॉपिंग करने जाती है तो बड़े सोच समझ के वो शॉपिंग करती है. वो नहीं चाहती कि उसके हस्बैंड की हार्ड अर्न मनी जो है वेस्ट जाए, तो वो इसलिए खाना लाती है, घर का खाना बनाती है. ऑफ कोर्स टेक अवे भी खाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो बड़ी दीनदारी से काम करती है. सो यू नो दिस अ ब्यूटीफुल एग्जांपल्स ऑफ
women in the Bible, and especially us women, when we go shopping, we say thank you to the Lord. And we want to say thank you, Lord, for Pioneer, for providing our food on our table, क्योंकि farmers के लिए हम दुआ करते हैं, जो जहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग होती है उनके लिए हम दुआ करते हैं, जहाँ पे से ये डिलीवर होता है उनके लिए दुआ करते हैं. देख लें शेरिफ भी was in town while we were there, so इसलिए मैंने कहा चलो सरफराज ज़रा be careful while you go past his car. आजकल बड़ा ये है कि जैसे for instance you have a car और टेस्ला जैसी कार है, उसमें कैमरे लगे हुए हैं, एंड जैसे आप बैठते हैं आके वापस अपनी चेक कर सकते हैं कैमरे पे किसी ने आपकी गाड़ी को छुआ तो नहीं, या स्क्रैच तो नहीं दिया, कुछ ऐसा डैमेज तो नहीं हुआ. सो इट्स पूरा फुल एविडेंस बन जाता है उसके ऊपर. सो एवरीबडी इज़ वेरी केयरफुल गाड़ियाँ जब पार्क करते हैं, और बार इसीलिए सरफराज डोर पकड़ के खड़े होते हैं, एंड ही लेट्स मी आउट, एंड आई डू द सेम फॉर हिम, बिकॉज वी हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट वी डोंट स्क्रैच एनीवन्स कार, बिकॉज ये बड़ा ही यानी कि लंबा ही चक्कर पड़ जाता है, आपको पता है फिर. ओके, तो ये तो था पायनियर के में जब गए, और इसके बाद फिर हम अम्बाला गए. हमने कहा अभी अब ब्रेकफास्ट भी कर लिया, लंच हो गया, तो सरफराज की तो ये स्पेशल प्लेस है, ही हैज़ टू कम हियर जब भी हम आए इधर आर्टिशिया, क्योंकि यहाँ पे चर्च भी इधर ही है, और आर्टिशिया में हमारे रिलेटिव्स भी इधर ही हैं, एंड वी हैव फ्रेंड्स एंड फैमिली हियर, द कम्युनिटी इज़ हियर, एंड वी जस्ट लव कमिंग टू आर्टिशिया सरीटस. यहाँ पे चर्चेज़ हैं हमारी देसी, और हमारे देसी बहन भाई रहते हैं, एंड आई जस्ट thank God for their life, all the Christians that live here, and are praying, always prayerful for this area. और ये है शॉपिंग सेंटर, जो कहते हैं कि डिफरेंट वेराइटीज़ हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं. साउथल की थोड़ी सी फील आ रही है, नॉट टू दैट एक्सटेंट. साउथल ब्रॉडवे तो बहुत बड़ा है, बहुत गहमा गहमी है, लेकिन एक बात हमने नोटिस की कि ये दुकानें अभी मुझे इतना बिजनेस हो रहा नहीं नज़र आ रहा था, और बताया गया है कि जब से काफ़ी तब्दीली आई है लॉ में यहाँ के, तो बहुत सारी यानी कि बिज़नेस पे भी इफ़ेक्ट हुआ है, और हर चीज़ पे. लेकिन इस रेस्टोरेंट पे इफ़ेक्ट नहीं हुआ. जब हम गए तो वापस उन्होंने पहचान भी लिया, और हमने भी कहा कि हम हर साल जब भी आते हैं 2 बार भी साल में आ जाते हैं, तो हम यहाँ अम्बाला पे आके जो है सरफराज को खाना होता है आलू पराठा, और बाकी जो बच्चे पानी पूरी ले लेते हैं, कोई समोसा चाट ले लेता है. भाई बड़ी खुशी से अपने स्टाफ को इंट्रोड्यूस करा रहे थे, और क्योंकि हम रेगुलरली जाते रहते हैं, तो कभी मेहमान आ जाए तो समोसे लेने चले गए, या कोई खुशी की बात हुई तो फिर मिठाई लेने चले जाते हैं. तो ये बहुत खुश हुए हमें रिसीव कर, और हमें भी उतनी ही खुशी होती है. एंड लास्ट टाइम एक्चुअली वी मेड सम फ्रेंड्स इन दिस प्लेस, बिकॉज वो पंजाबी में बात कर रहे थे, तो सरफराज ने भी कुछ कह दिया, तो बड़े खुश हुए. तो जब हमने पता चला कि हम असी इंग्लैंड तो आए हैं, तो होर भी खुश हो गए. कहते क्या बात है जी, वलैतियां दी तो गल ही कोई होर है. वाकई सही बात है. और कहते कि जब पहले लोग आना चाहते थे इस कंट्री, यानी वलायत जाना चाहते थे, तो सबसे पहले वलायत का इंग्लैंड का ही नाम होता था. अमेरिका की तो कोई बात भी नहीं सोच सकता, कोई सोच भी नहीं सकता था. तो हर कोई इंग्लैंड जाना चाहता था, वो बड़ा अट्रैक्शन होता था पंजाबी लोगों के लिए पंजाब से. तो ये ऐसी गुफ्तगू, ऐसी बातचीत उनके साथ हुई. ये देखिए हमारा खाना पहुंच गया, और ये है समोसा चाट, ये है पानी पूरी. मैंने टेस्ट किया था, लेकिन सॉरी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, लेकिन आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, बड़ा ही अच्छा था. नाइस एंड स्पाइसी समोसा, नाइस गरम गरम था, और ऊपर कैसा पराठे की पहली बुर्की ली आपने? ज़बरदस्त है, जैसे हम खाते रहते हैं, बहुत गरम गरम है, मक्खन ऊपर और चाय, साथ बहुत ही टेस्टी है. और ये अच्छा योगर्ट साथ इन्होंने दिया है, योगर्ट दिया, अचार दिया है, और जलेबी. और डिजर्ट के लिए हमारे पास है जलेबी और वाइट स्नोबॉल. ठीक है, सरफराज खा रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं, और स्माइल्स भी हैं. और फिर चाय का ऑर्डर ज़रूर होता है पराठे के साथ, तो सब हम सब ने चाय पी, और बहुत ही मज़ा आया. और यहाँ पे काफ़ी ज्वेलरी, यानी कि गोल्ड ज्वेलरी अगर आपने लेनी हो, तो हम एक शॉप के अंदर गए देखने के लिए. मैंने कहा वीडियो बना लूँ, वो कहते नहीं आप वीडियो नहीं बना सकते. तो खैर एनीवे यू विल सी शॉर्टली व्हेन वी लीव द रेस्टोरेंट. और ये चाय पी, पराठा खाया, थोड़ा सा रिलैक्स किया, क्योंकि दोपहर का वक्त था. तो अब खाने के बाद तो वैसे ही नींद आ जाती है, और सरफराज ने पराठा खाया, थोड़ा सा मैंने भी शेयर किया साथ. तो दैट वाज रियली रियली गुड, डिलीशियस था. फिर हम आगे बढ़े, और जब भी हम बाहर जाते हैं तो
खुदावंद को याद करते हैं, उसको शुक्रगुजारी करते हैं। किसी भी रेस्टोरेंट में हो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कहीं भी हो आप मत शर्माएं, सब मिलकर दुआ करें। हम किसी भी रेस्टोरेंट में कहीं भी जाते हैं, हम दुआ करके खाने को लेते हैं। ये मत सोचें कि आपको लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्योंकि खुदा ही है जो प्रोवाइड करने वाला ये सारी ब्लेसिंग्स। There you go, Ambala, sweets and snacks. This is a regular place where we just love to have chai and a bit of मिठाई होगी या whatever, समोसा जैसे दिखा आपने लिया हमने। और our grandson made us laugh because ये हमारी स्वीट डिश, उसने क्या ऑर्डर किया था, वाइट स्नोबॉल वो आई थिंक वो रसगुल्ला होता है, आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज़, टू बी ऑनेस्ट मुझे भी नहीं श्योर ये मिठाइयों के क्या नाम है। एनीवे यू सो वो वाइट वाला जो गोल गोल मिठा था वो उसने ऑर्डर किया एंड वी वर लाफिंग। सो देयर यू गो, दिस इज़ द रेस्ट ऑफ द स्ट्रीट, जिधर ये बड़े स्टोर्स हैं, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है लोगों की। स्पेस की बात करें तो ये स्टोर इतने नीट एंड क्लीन एंड टाइडी हैं, और बाहर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, वी ड्राइविंग फास्ट सो यू कांट प्रॉब्ली मेक अप, बट लेकिन इट्स सच ए ब्यूटीफुल एरिया टू विजिट, और ऑन फुट पर जाएं तो आपको और भी एक्सपीरियंस होगा। सो लाइक आई सेड वी हैव बीन कमिंग हियर फॉर नंबर ऑफ इयर्स नाउ, नॉट मच हैज चेंज्ड बट वी थॉरली एंजॉय आवर स्टे हियर। सो उसके बाद we thought, well, we still have time, we don't want to go home yet, and so we decided to go to Macy's, my favorite store. JC Penney हुआ, Macy हुए, ये पुराने नाम है, बेशक ये स्टोर्स बंद भी हो रहे हैं, जा भी रहे हैं, तो दिल थोड़ा सा उदास होता है, क्योंकि हम यंग थे जब से, तब से इन स्टोर्स के बारे में सुनते हैं, एंड वी बीन कमिंग हियर ऑलमोस्ट 30 years नाउ। तो ये बड़े पुराने स्टोर्स हैं जिस पे अक्सर हम JC Penney हुआ, Macy's हुए, रॉस हुए, ये स्टोर्स पे हम जाते रहते हैं, बार्गन्स मिल जाती है। सो एवरीथिंग इज़ चेंजिंग, लाइक आई वाज वाचिंग दिस AI की वीडियो मैं देख रही थी, उसमें कैसे सब कुछ चेंज हो रहा है। बाय 2050 it's going to be another world, and we can see it happening already. We can see things are changing, things are on the move. Small businesses already struggle कर रहे हैं, jobs के लिए नौजवान बच्चे मुश्किल में हैं। Okay, so considering what we did throughout the day, we came home, और अब काफ़ी रात हो चुकी थी, तो मैंने देखा अब क्या कुक किया जाए। तो फ्रीज़र में पड़े थे ये कीमा के ये क्या कहते हैं, कोफ्ते। तो मैंने जल्दी से, मीट बॉल्स कहते हैं, मिन्स मीट बॉल्स, तो मैंने जल्दी से तड़का बनाया, और उसमें मैंने फिर ये जो थे कोफ्ते जो रेडीमेड फ्रीज़र में थे, तो मैंने ये डाल दिया। एक्चुअली इट टर्न्ड आउट टू बी क्वाइट स्पाइसी, क्वाइट नाइस। तो मैंने ये बना दिया। फिर मैं सोच रही थी अब क्या करूं, आटा तो गूंदा पड़ा था, रोटी बनाए या फिर राइस। फिर मैंने कहा ये पेपर्स भी ख़राब हो जानी, जल्दी से इनको भी रफली चॉप करके मैंने इसमें ऐड करना है ताकि थोड़ी सी सब्ज़ी भी आ जाए। आई एम अ वेजिटेबल लवर, सो सब्ज़ी मैंने काटी दिखा रही हूँ आपको, और मैंने कहा इसको भी इसमें डाल देते। फर्स्ट आई वाज थिंकिंग आई विल मेक मिर्च एंड दिस कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, शिमला मिर्च और आलू डाल के या पीस। फिर मैंने कहा नहीं, अब ये बन रहा है तो इसी में मैं डाल देती हूँ। फिर सोचने लगी कि इसको सूखा रखें कि थोड़ा सा ग्रेवी डाल दें। फिर मैंने कहा ठीक है, राइस प्लेन बन रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें ग्रेवी हो जाएगी, थोड़ा सा तो अच्छा होगा। So while this is cooking, I decided to put the rice on in the rice cooker as well. काफ़ी जल्दी बन जाते हैं और गरम गरम खाए जाते हैं, और काफ़ी देर तक वो गरम भी रहते हैं। सो इसको देख सकते हैं, ये सब्जियां कहते हैं कि सब्ज़ी खाना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है, बट दैट्स ओके, वी हैव मीट एंड समटाइम्स आई पुट वेजिटेबल्स इन इट। और मुझे क्योंकि सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है तो मैं सब्ज़ी को ज़रूर ऐड कर ही लेती हूँ। And the weather was really, really nice, even though it was a bit hot, but the air conditioning was on. That kept the kitchen really cool. और कहते हैं कि जैसे खुदा के कलाम में लिखा है कि वो सुबह उठती है, I'm sorry, I don't wake up that early, but खुदा के कलाम में लिखा, she gets up while it is still night, she provides food for her family and portions for her female servant. Proverbs 31:15 में लिखा है। इससे शो करता है कि वो एफर्ट करती है और अपनी फैमिली के मील्स की प्रिपरेशन को जो प्यार से वो बनाती है वो केयर करती है। I do wake up early to pray and sometimes I go back to bed, but I do wake up quite early। तो क्या करती, सारा दिन वो जो प्रोवर्ब्स वाली औरत है वो सारा दिन प्यार से काम करती है। So she makes sure that cooking is done,
और ये उसकी एक सर्विस होती है फैमिली के लिए। वो यानी कि किसी के दबाव की खातर नहीं करती, वो प्यार से करती है और परोसती है उस खाने को, और पूरा ख़ानदान खाता है और दुआएं देता है। गॉड ब्लेस यू। ये था आज का हमारा प्रोग्राम। आप भी हमारे साथ इसी तरह से बने रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर भी करें। और इसमें मुझे इतनी खुशी होती है कि आप हमें प्यार देते हैं और खुदा के कलाम को सीख रहे हैं। और ये प्रोग्राम इसलिए डिफरेंट है, स्पेशल हैं, खुदा ने मुझे खुद ये डायरेक्शन दी है ज़िंदगी में हम कैसे खुदा को आगे रख सकते हैं। और काम पे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, जीसस को लेके साथ जाते हैं। गॉड ब्लेस यू। बल्कि जीसस हमें साथ लेके जाते हैं। गॉड ब्लेस यू, लव यू, एंड आई विल स्पीक टू यू सून। टिल देन, shalom everyone.